Very good morning everyone, Bill on the side. Welcome to the D14 session of Trade Like Berlin. Trade Like Berlin के D14 session में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. To all the members over there, to all the students of Trade Like Berlin, to all the people who are there in Trade Like Berlin, I welcome you all to this session. In this session I'm going to reveal a secret. A secret that the one who knows will not going to reveal. Okay. But I consider that I'm someone who wants his students to become the masters, and I will never want that my student will remain students. That is why I'm going to reveal the things to you all. In this video I'm going to explain you that how you can predict कि इन फ्यूचर मार्केट में क्या हो सकता है, हाउ यू कैन प्रिडिक्ट इट. कब एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, कब मार्केट कहाँ पे टॉप लगा सकता है, कहाँ से बॉटम लगा सकता है, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है. आई एम गोइंग टू रिवील दिस थिंग टू यू ऑल, एंड लेट मी टेल यू दैट वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू टूडे, वॉट एवर आई एम गोइंग टू रिवील यू टूडे, I myself learned it from the charts only. But nobody told it to me. Nobody taught it to me. Got it? किसी ने ना मुझे ये चीज़ सिखाई है, ना मैंने कहीं से पढ़ी है. Okay. So, yeah. I can tell you one thing, that the one who seek knowledge, the one who is focused on learning more than money, can learn these things. Okay. वो लोग कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे जो जिनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान कॉल्स, पुट्स, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करना, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इन सब चीज़ों में जिनका ध्यान है सिर्फ, वो कभी इन चीज़ों को नहीं सीख सकते. ओके. सो यू कैन कॉल इट अ ब्लेसिंग फ्रॉम मार्केट टू मी दैट आई लर्न दिस थिंग एंड मार्केट टॉट मी दिस थिंग. So I'm just going to pass on to you, and I want you all to respect it. Okay. You know, respecting what you're getting is very important. If you will not respect it, I don't think that you're going to get anything in the future. Okay. So respect these things. Okay. What is the meaning of respect here? See, there is a theory in the stock market, and the theory says a simple thing, that the thing which majority knows rarely makes money, and the thing that minority knows 8 times make money out of 10 times. Okay. So you have to be on the minority. Whatever you're getting, keep it with you, okay, and keep it within you. Don't go for revealing these things. Respect these things. You are getting it. That doesn't mean that you can just give it anywhere. No. These things only belongs to the people of Trade Like Berlin, the students of Trade Like Berlin. Now let's begin with the video. So शुरुआत करते हैं 2 कोट्स के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. अगर आप समझते हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि हाउ आई केम टू नो अबाउट दिस थिंग. गॉट इट? सो लेट मी टेक यू टू द व्हाइट बोर्ड फर्स्ट, एंड देन विल बी कमिंग बैक टू द चार्ट्स. जो 2 कोट्स हैं, वो दोनों ही जो कोट्स हैं वो बहुत अलग अलग जगह से लिए गए. पहला जो है वो बाइबल से लिया गया, दूसरा जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर से लिया गया. ओके. दोनों कहते एक ही बात है, बट लैंग्वेज अलग है. ओके. समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, बट ध्यान से अगर पढ़ा जाए, यहां से स्टडीज चालू होती है ना,
तो सब कुछ फोकस करके समझना है. ओके, यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, सब स्टडी से रिलेटेड है, तो समझना सब कुछ है. ओके, सो दोनों कहते एक ही बात है बट थोड़ी अलग लैंग्वेज में. ओके, ये चीजें ऐसी हैं जो रिवील नहीं की जा सकती हैं. ठीक है, खुल्लम खुल्ला नहीं बताया जा सकता. गॉट इट? सो द पीपल हु नो, वी कैन जस्ट थैंक देम. ओके, we can just thank them to just so that they just reveal the 1%. उन्होंने जो 1% बताया ना, that is kindness. Okay, जो 1% बताया, that is enough for the one to unlock the rest of the mystery. Got it? So जो कोट है वो ये है, बाइबल ये कहती है कि there is nothing new under the sun. Whatever has happened before will happen again. This is by the Bible. And बाइबल ने ये चीज सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं कही है. न बाइबल का कोई इंटेंशन ही नहीं है कि उसने ये चीज को स्टॉक मार्केट के लिए कहा है. बाइबल ने इस चीज को पूरी दुनिया के लिए कहा है. दैट यहां पर सन के नीचे, सन के अंडर कुछ नया नहीं है. मतलब जहां पर अपन रह रहे हैं वहां कुछ नया नहीं है. जो पहले हो चुका है वो फिर होगा, और जो आज हो रहा है वो भी फिर होगा. गॉट इट? एंड इसी चीज को एक ट्रेडर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर, उन्होंने भी ये चीज कही थी कि देयर इज नथिंग new in the stock market. There can't be, because speculation is old as hills. Because speculation is old as hills. Whatever has happened before or whatever is happening today will happen again in the future. Got it? अब इन दोनों चीज में कॉमन क्या है? Whatever has happened before will happen again. यहाँ पर भी whatever has happened before will happen again. And that is the 1% thing that you need to unlock the rest of the mystery. Got it? अब ये चीज क्या कहती है कि read the history, कि पहले क्या हुआ था. Okay. Then go for slightly predicting the future. Okay. Now let me tell you how I learned this thing. जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो मैंने कैसे सीखी. ठीक है. There was a time when I used to read chart for 4 hours, 5 hours. Okay. 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे मैं जब चार्ट्स पढ़ता था. Okay. तो वहां पर पहले कुछ समझ नहीं थी. Whatever I'm teaching you, I myself learned it from charts. Okay. I can just thank chart. मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि the people who are busy in calls and puts, the people who are busy with money, the people who are busy with profit and loss can never see these things. Okay, इन चीजों को वो कभी नहीं देख सकते. ठीक है, because they are focused on money. The one who is seeking knowledge, okay,
the one who love the markets, the one who wants to understand why this thing happened, how this thing happened, will be the one who can understand it. Okay, things will be revealed to those who wants to know. Okay, मैंने एक कोट बताया था आपको बहुत दिन पहले कि ask and you shall receive, knock and it will be open to you. Okay, आप उस चीज को मांगो तो you will get it. Okay, so indirectly जब मैं चार्ट्स रीड करता था, स्क्रॉल करता था, सिर्फ और सिर्फ चार्ट में सर्फिंग करता था, तब मुझे डॉट्स मिलने लगे जिनको मैं नोट करता गया. ओके, हर महीने में एक डॉट, अगले महीने, उसके अगले महीने एक डॉट, किसी महीने में 2 डॉट, फिर कुछ डॉट्स एंड फिर डॉट. फिर जब इन डॉट्स को मैंने कंबाइन किया तो एक स्ट्रक्चर बना, एंड ये स्ट्रक्चर और अच्छा बनता गया, और अच्छा बनता गया, और अच्छा बनता गया, और अच्छा बनता गया, एंड ऐसे धीरे 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 करके एक ब्यूटीफुल स्टडी तैयार की मैंने, जहां पर मुझे पता चला कि हाँ, थिंग्स कैन बी प्रिडिक्टेड. ओके, प्रिडिक्शन का मतलब क्या है मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि 10 बार आप किसी चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हो तो चांसेस है कि आप 7 बार सही हो, 3 बार गलत हो. दिस इज स्टॉक मार्केट. ओके, दिस इज व्हाट स्पेक्यूलेशन मीन्स. स्पेक्यूलेशन का मतलब यही होता है. ओके, कि आप प्रिडिक्ट करते हो. 100% आपको कुछ नहीं पता रहता है. बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पे आपको 100% चीजें पता रहती. तो यही अपन सीखने वाले हैं. ओके, नाउ इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू रिवील यू 20% of the thing because I don't want to put so much burden on you. Okay, when I say things you have to accept it. Okay, because मैं इन चीज़ों को फेस करता हुआ आ रहा हूँ. सारी चीज़ें एक बार में जब दिमाग में जाएंगी ना तो एक खिचड़ी बन जाएगी, तो उसका कोई सेंस नहीं. ठीक है, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू, इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड द टॉप्स एंड बॉटम्स. टॉप्स एंड बॉटम्स को कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, मार्केट रिवर्सल्स को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे आप 10 दिन पहले ही बता सकते हो, कैसे आप 1 महीने पहले ही बता सकते हो कि मार्केट कहां से रिवर्स होने वाला है. ओके, जैसे एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है. ठीक है, आप आस लगाए बैठे हो कि भाई मेरे को डिप बाय करनी है, मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा. आप कैसे पहले ही बता सकते हो कि एक डिप आने वाली है, मार्केट में एक रिवर्सल आने वाला है, कैसे बता सकते हो. दैट आई एम गोइंग टू रिवील यू, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू कि हाउ यू कैन डू इट. एक अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है तो आप कैसे पहले ही बता सकते हो कि हाँ यार इस दिन मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, तो जब मार्केट उठेगा तो तू शॉर्ट कर लेना, लाइक दिस. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड द टॉप्स एंड बॉटम्स इन द मार्केट. गॉट इट? लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिकल पार्ट. थ्योरी जो समझानी थी मैंने समझाई. So the part says that whatever has happened before will happen again. Okay, इसका मतलब you have to read the history. Got it? जैसे अभी क्या कौन सा मंथ चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है. ठीक है, तो आपको ये देखना है कि पिछले जुलाई में क्या हुआ है, उसके पिछले जुलाई में क्या हुआ है, उसके पिछले जुलाई में क्या हुआ. ओके, देन जो चीजें कॉमन है उनको साइड में रखना है. कॉमन चीजों से मतलब है, कॉमन चीजें, जो चीज रिपीट हो रही है उन चीजों को दिमाग में रखना है. ठीक है, जैसे अभी मैं पूछूं कि 6 जुलाई है आज, मार्केट कहां से रिवर्सल ले सकता है, आप नहीं बता पाओगे. बट यू नो आई कैन टेल यू. यू कैन कॉल मी अ मैजिशियन और यू कैन कॉल मी एस्ट्रोलॉजर, बट आई कॉल इट स्टडिंग द मार्केट. ओके, हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, learn this. Got it? Simply just mark the July. कहां से जुलाई चालू हुआ है, यहां से चालू हुआ है और यहां पे खत्म होगा. ठीक है, अब ये महीना हो गया, मेरे को तो पता नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकता हूं, बट पास्ट को पढ़ के बताया जा सकता है. ठीक है, सो यहां पे क्या करूंगा, मैं पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि पहले मैं मार्क करूंगा
कुछ पिछले 2-3 साल के जुलाई को, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मार्क किया, ठीक है। फिर और पीछे जाऊंगा, 2023 को भी मार्क करूंगा। 2023 में आ जाते हैं अपन 7th मंथ में, एंड आई विल सिंपली बी मार्किंग दिस, गॉट इट। ये मैंने मार्क किया, ठीक है। अब मैं एक और जुलाई को लूंगा, कहाँ से चालू होता है, यहाँ से चालू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। नाउ आई कैन टेक मोर एंड मोर एंड मोर, बट इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, 3 साल इनफ है, ठीक है। अब सिमिलैरिटीज देखनी है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, ट्रेंड रिवर्सल फाइंड करना है। तो आपको ये देखना है कि प्रीवियस जुलाई में ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से हुआ था, गॉट इट। यू हैव टू सी, रीड करना है। दिस इज कॉल्ड हाउ यू कैन रीड द चार्ट्स, ओके। यू हैव टू सी कि पिछले जुलाई में कहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ था। देयर वाज अ शार्प ट्रेंड रिवर्सल कहां से हुआ था, एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ था कितने तारीख को, 10 तारीख को। एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ था कहां पे, 19th को, ठीक है। फिर उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ था 23rd को। ये 3 ट्रेंड रिवर्सल्स थे। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो कि एक अप ट्रेंडिंग मार्केट आता जा रहा है, देन एक ट्रेंड रिवर्सल आया, यहाँ पे टॉप बना, मार्केट ने रिवर्सल दिया, जो आपको डिप चाहिए वो मिली, एंड देन उसके बाद फिर एक ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, फिर एक टॉप बना, फिर एक डिप मिली, फिर अगले दिन कुछ दिन मार्केट डाउन यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एक बॉटम बना एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ। मतलब एक यहाँ बना, देन उसके बाद एक यहाँ बना, फिर एक यहाँ बना, ठीक है। अब इस चीज को ये देखना है कि पिछले कितने साल में ये चीज कॉमन है, कितनी बार ये चीज हो चुकी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली और पीछे जाएंगे। दिस इज कॉल्ड वॉट एवर हैज हैपेंड बिफोर विल हैपन अगेन, गॉट इट, गेटिंग माय पॉइंट। सो विल स्क्रॉल एंड विल सी कि क्या पहले भी ऐसा हुआ है। नाउ कितने तारीख को है यहाँ पे, सी 7th को एक बॉटम लगा एंड 10th से एक रिवर्सल आ गया, ओके। देन क्या हुआ कि 20 को एक टॉप लगा एंड देन उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है। एंड देन 25 को एक बॉटम लगा। तो आगे का छोड़ते हैं, 2 रिवर्सल डेट्स यहाँ पे भी देखने को मिले। अब इस रिवर्सल डेट को अपन मैच करते हैं कि क्या ये इन रिवर्सल डेट से मिल रही हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 10th से एक ट्रेंड रिवर्सल आया, क्या पिछली बार ऐसा हुआ है, 10th से एक ट्रेंड रिवर्सल आया हुआ है, ओके। फिर उसके बाद सी दिस 19th को एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, यहां पे क्या दिख रहा है, 20 को एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, ओके। यहां पर बेसिकली एक गैप अप या कुछ ओपन हुआ होगा, देन उसके बाद से अगले दिन से मार्केट फॉल होना चालू होगा, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन डिटरमाइन, गेटिंग माय पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम मोर स्टडीज, थोड़ा और अपन बैक जाते हैं और अपन मैच करते हैं चीज़ों को, ठीक है। जैसे और मैं बैक लेता हूँ, जैसे मैं सीधे 2019 में चला जाता हूँ या फिर 2018 में चला जाता हूँ, ठीक है, या फिर 2020 में चला जाता हूँ। तो मैं इन चीज़ों को मैच करता हूँ कि क्या ये चीज़ें पहले भी हुई हैं। तो क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपली सी यहाँ से लूँगा, एंड तक मार्क करूँगा यहाँ पे, फर्स्ट थिंग। Then we'll add some more years like this. See, there we go, got it. And then एक ईयर को और ऐड कर लेते हैं, 2019 को, okay, this is 2019, 2018, सो आई होप वी आर गुड टू गो, ठीक है। अब इस चीज को देखते हैं कि क्या पहले भी ये चीजें हुई हैं, ओके। सो ये जो भी ईयर है 2022 होगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे क्या देखना है कि ट्रेंड रिवर्सल आया 10 के पहले,
8 को एक टॉप लगा एंड 10 के बाद से एक टर्न रिवर्सल आया। गॉट इट। यहाँ पे एक पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा जो रिपीटेड चीज हुई है वो क्या हुई है, क्या हुई है, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड चीज हुई है वो है कि 8 से 9 के आसपास एक ट्रेंड रिवर्सल अपन को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अपन सिंपली क्या करेंगे, आगे जाएंगे और यहां पे मार्क करेंगे कौन सी तारीख, 9th और 10th कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 10th ले लेते हैं कि 10th को अपन को एक टर्न रिवर्सल देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से मार्क कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या आगे यहाँ पे 14 में हो गया है। ठीक है, देन उसके बाद 20 के आसपास एक टॉप लगाने का मार्केट ट्राई किया। ठीक है, देन 22 में एक है, तो 22 को एक मार्क करते हैं यहाँ पे एंड 22 में एक टॉप लगा था एंड देन उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया था। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं 23 को एक मार्केट ने बॉटम लगाया। टॉप या बॉटम से मतलब नहीं है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है क्या, इस चीज को देखना। ठीक है, सो 23 को देयर वाज अ बॉटम। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये चीजें धीरे धीरे दिमाग में घुसानी है, एक बार में नहीं दिमाग में घुसाना है। ठीक है, एक बार में नहीं दिमाग में घुसा लेना है इन चीजों को। ठीक है, क्या है, 23 के आसपास एक बॉटम लगा, एक रिवर्सल आया, क्या हुआ है यहाँ पे 22 के आसपास एक टॉप लगाया और एक रिवर्सल आया, कॉमन थिंग। ओके, यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, सिंपली एक और चीज को ऐड करने वाले हैं, जो दूसरा जो अपन को एक रिवर्सल दिखा है, ये यहाँ पे 19th को है। ओके, एंड देन यहाँ पे 20 को है, एक और यहाँ पे डेट ऐड कर लेते हैं। क्या है वो डेट, जैसे 19 और 20 दोनों हॉलीडे, तो एक दिन पहले 18th आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 18th को सिंपली ऐड कर लूंगा। अब मैंने यहाँ पे आपके सामने 2 डेट्स मार्क की। ठीक है, इन 2 डेट्स में आगे चल के आपको रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे, ट्रेंड रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ तो फ्यूचर नहीं दिख रहा है ना आपको, बट मैंने यहाँ पे मार्क किया कि दैट दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन। ओके, अब प्रोबेबिलिटी नाम की एक चीज होती है कि मान के चलो मैं एक बार यहाँ पे गलत हो जाता हूँ। ठीक है, मैं सेम स्टडीज को अप्लाई करूंगा और मैं ओवर द ईयर्स मेरे हिसाब से टॉप या बॉटम्स को कॉल आउट करने में बहुत रेयरली ही गलत होता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं बहुत रेयरली ही गलत होऊंगा। 2 डेट्स मैंने जो आपके सामने निकाली हैं वो क्या निकाली है, 10 तारीख को एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है और 18 तारीख को आ सकता है, देखते हैं बात है कि नहीं। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ओके, अब क्या चीज है, एक और चीज करनी है अपन को, वो ये करनी है कि ये मैंने आपको क्या बता दिया, वैसे इस बात को मैं पार्ट को मैं इंक्लूड तो नहीं करना चाहता था, बट मैं इंक्लूड कर ही देता हूँ। ठीक है, कर दूं क्या, कर दूं क्या, कर दूं क्या, कर दूं क्या, कर देते हैं। ठीक है, मैंने डेट्स निकालना बता दिया कि डेट्स कैसे आप निकाल सकते हो, ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से होने वाला, कब होने वाला, कैसे होने वाला, ये मैंने बता दिया। ठीक है, मैं एक चीज और बताता हूँ कि कब मार्केट में शार्प बुलिशनेस और कब शार्प बेयरिशनेस आने वाली। ठीक है, इन चीज को भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस चीज को देखते हैं। मैं इनको हटा दूं क्या, कुछ और देखना है तो देख सकते हैं, जैसे और पीछे जा करके, अगर मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता हूँ, 2021, 22, 23 देख लेता हूँ, 24 देख लेता हूँ, इनफ है। ठीक है, इतना पास पढ़ो, इतना ही इनफ है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये डेट्स कुछ निकाली। अब एक और कॉमन चीज देखते हैं। ठीक है, कि शार्प बेयरिशनेस, शार्प बुलिशनेस कब से आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए अभी भी आपके सामने कुछ, आपको कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है, कब मार्केट में क्या होने वाला, कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है, पर मैं अगले 6 महीने का बता सकता हूं कि कहां पे क्या होने वाला है। ओके, एक चीज ही नहीं, बहुत सारी चीजें ऐड अप करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या करने वाले हैं, अपन यहां पे एक सिमिलर पैटर्न ढूंढने वाले हैं। ठीक है, क्या ढूंढने वाले हैं, सिमिलर पैटर्न। ओके, सिमिलर पैटर्न को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, अब इस पैटर्न को कैसे फाइंड आउट करना है उस चीज को समझते हैं। ठीक है, पीछे जाते हैं और देखते हैं कि कहां पर ऐसे सिमिलर चीजें हुई हैं जो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी होंगी। ठीक है, तो आने वाला मंथ क्या है कि अगस्त है, तो मैं यहां पर सिंपली क्या मार्क करता हूं,
अगस्त को मार्क करता हूं, ठीक है। मैंने पूरा अगस्त मार्क नहीं किया है, क्यों नहीं मार्क किया मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि पूरे अगस्त में मेरे को लेना देना नहीं है। लोगों का पैसे से ध्यान हटके अगर इतना ही चला जाए ना तो लोग ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। स्पेक्यूलेशन इज अ आर्ट, पीपल जस्ट focus on money and I think the one who are teaching that they even don't have enough knowledge, जो आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, उनके पास ये नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड यू कैन जस्ट कॉल दिस थिंग, अपने में ही एक ग्रैटिट्यूड होना है, ठीक है, कि या यू आर डिफरेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क यू पुट इनटू द वर्क, जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव, ओके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक अगस्त का अर्ली स्टेज मार्क किया है, ठीक है। यहाँ पर भी अगस्त आता है क्या? ठीक है, ठीक है। तो अगस्त आज से एक महीने बाद आने वाला है, 24 दिन बाद, 25 दिन बाद आने वाला है। अपन पहले से ही प्रेडिक्ट करें कि अगस्त में क्या होने वाला है, स्पेकुलेट करें। कैसे स्पेकुलेट करेंगे? रीड करेंगे किस चीज को? पास्ट को। वॉट एवर हैज हैपेंड बिफोर इन स्टॉक मार्केट, इट कैन हैपन, इट विल नहीं होगा, कैन होगा, ओके, इट कैन हैपन। अपन नहीं बोलेंगे कि इट विल हैपन, इट कैन हैपन, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, ओके। सो कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा अर्ली पीछे जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। आप इस पैटर्न को देखो, लुक एट दिस। क्या हुआ 2024 में? मार्केट शुरुआत के 3 दिन में ब्रूटली फॉल हुआ। 2023 में मार्केट की शुरुआत 3 दिनों में ब्रूटली फॉल हुआ, ठीक है। एंड देन उसके बाद इस प्रीवियस ईयर में यहाँ पे कुछ साइडवे था, कुछ नहीं था, फिर उसके बाद एक राइज था, कुछ नहीं था। तो अपन इसको कंसिडर नहीं करेंगे, और भी पीछे ईयर्स ले लेते हैं जहां पर अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो अपन उस चीज को कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे there we go, and there we go, ठीक है। सो इन 2 ईयर्स को हटा करके, इस ईयर को और इस ईयर को, ठीक है, हटा करके अगर अपन देखेंगे तो एक चीज कॉमन दिख रही है, एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है? देयर इज अ शार्प फॉल, there is a sharp fall, ठीक है। and then again in 2020 there is a sharp fall, okay, then in 2019 there is a sharp fall, okay। 2018 में भी देखें सेम चीज को कि क्या सेम चीज हुई है। look at this, क्या दिख रहा है? अर्ली अगस्त there is a sharp fall. This is called reading the patterns. आपके लिए पैटर्न्स क्या है? डबल टॉप, डबल बॉटम, फिर उसके बाद फ्लैग एंड पोल, है ना, ये पैटर्न्स है आपके लिए। फॉर मी दीज आर पैटर्न्स, ओके। दीज थिंग्स कैन रिपीट, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो आने वाला अगस्त है, जैसे यहां से चालू होगा जो, ठीक है, और अपन अर्ली की बात कर रहे हैं तो कुछ 5-6 दिन ले लेते हैं, तो इस एरिया में एक फॉल आ सकता है, ठीक है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ चांस। अब चांस को रियलिटी में कैसे बदलना है, प्रोबेबिलिटी को अपन रियलिटी में कैसे बदल सकते हैं, उस चीज को समझो, ठीक है। अब आप इस चीज को देख रहे हो कि दैट मार्केट गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। अब यहां पर क्या आ गया? यहां पे आ गया अगस्त का शुरुआत हो गया, ठीक है। आप तो क्या बोलोगे? आप तो डायरेक्टली, आपको तो उज्ज्वल ने बता दिया ना
फिर बर्लिन ने बता दिया कि भाई अर्ली अगस्त है, फॉल आना है, आएगा ही आएगा ही। बर्लिन ने बोला कैसे नहीं होगा, आप यही बोलोगे ना। बट क्वेश्चन करो अपने से, पूछो मार्केट ऑलरेडी गिरे है ना, तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे? क्या कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहां से मार्केट साइड हो जाए, कोई और पैटर्न बना ले, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है कि उस सेम पैटर्न का रिपीट होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो इस सिनेरियो में तो मैं बेट नहीं लेने वाला हूं। हाँ, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, अपसाइड भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, तब देयर इज अ चांस कि जो चीज पहले हुई है वो रिपीट हो सकती है। क्यों? क्योंकि अपन ऐसे सिनेरियो में है, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि जैसे अभी क्या चल रहा है, मतलब जुलाई चल रहा है ना, अगर ऑल टाइम हाई हिट कर देता है मार्केट, ठीक है, फिर यहाँ पे साइड वे या कुछ हो जाता है, ओके, अगस्त अपीयर होता है, मैं बेट करूंगा कि वो जो पैटर्न है वो रिपीट होगा, अर्ली अगस्त में एक फॉल आएगा। गॉट इट? एक और चीज रिवील कर दूं अभी से ही, कर दूं कि नहीं करूं? चलो ठीक है, ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। कुछ चीजें आप भी प्रेडिक्ट करो एंड मेरे डीएम्स में भेजो कि हाँ बर्लिन दिस कैन हैपन। मैं चाहूँ तो अभी प्रेडिक्ट करके छोड़ सकता हूँ, बट छोड़ो, देखेंगे। सब चीज़ एक बार मैं बता दूंगा मतलब मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया है इसमें, ठीक है। तो ये आगे का जो पार्ट है वो आप मेरे को प्रेडिक्ट करके भेजो, बट मैं आपको यहाँ पे ये इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, कि जो ये अर्ली फॉल है अगस्त का, वो किस सिनेरियो में हो सकता है? जब मार्केट ऑल टाइम हाई हिट कर चुके हों, मतलब एक ऐसा पैटर्न चल रहा हो, ऐसा मार्केट चल रहा हो, ठीक है। अंधाधुन नहीं घुसना है, किस चीज का कंफर्मेशन लेना है? प्राइस का कंफर्मेशन लेना है। गॉट इट? कि जैसे पैटर्न कैसा है, कहां पे क्या चल रहा है, साइडवे चल रहा है, आ सकता है फॉल, डाउन ट्रेंडिंग चल रहा है, चांसेस कम है बट आ सकता है। इसलिए मैं इस सिनेरियो में ट्रेड करना नहीं चाहूंगा। किस सिनेरियो पे ट्रेड करना चाहूंगा? जब मार्केट या तो अप ट्रेंडिंग हो, ओके, देयर कैन बी शार्प फॉल, देयर कैन बी शार्प रिवर्सल, बिकॉज इट हैज हैपेंड बिफोर, इट कैन हैपन। सो मैं इस चीज को यहां पर इंटरप्रेट करूंगा एंड कोशिश करूंगा कि ये चीज होगी तो मैं पैसा बनाऊंगा, नहीं होती है तो मैं बहुत छोटा मोटा अमाउंट गवाऊंगा। ओके, दिस वॉज अनदर थिंग, दिस वॉज पैटर्न रीडिंग, या पैटर्न कैसे रीड कर सकते हो, ठीक है। अब टॉप्स एंड बॉटम्स की डेट ही निकाल देते हैं, इतना कुछ कर ही दिए हैं तो अपन ने क्या चीज रीड की थी, कैसे प्रिडिक्ट करना है टॉप्स एंड बॉटम्स को? सिंपली थोड़ा सा इसको स्केल करेंगे, कहां तक लेके जाएंगे? अगस्त तक लेकर जाएंगे, पूरा एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको भी सेम चीज़ करेंगे, थोड़ा एंड तक लेके जाएंगे, ओके। एंड देन उसके बाद सेम चीज़ करेंगे, थोड़ा एंड तक लेके जाएंगे, एंड यहाँ पे भी कर देते हैं। जितना थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो आइडिया हो जाएगा क्या हो सकता है, ठीक है। तो आई होप इतना यहाँ तक इनफ है, ठीक है। ये मैंने यहां तक कर दिया। अब निकालते हैं कि जो आने वाला अगस्त है उसकी टॉप्स एंड बॉटम्स की डेट क्या हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे अगस्त मार्क कर दिया। अब इस चीज को पढ़ते हैं कि आगे क्या हो सकता है। गॉट इट? सो फिर से मैंने एक मार्क लिया है, यहां पे क्या दिख रहा है? 5 अगस्त को एक बॉटम है, ठीक है। देन एक टॉप है 12 अगस्त को, एंड देन उसके बाद एक बॉटम है 14 अगस्त को मैंने मार्क किया, ठीक है। दो यहाँ पे डेट्स मार्क की हैं, ओके। देन यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि 3 अगस्त को यहाँ पे एक बॉटम है, एंड देन उसके बाद मार्केट राइज किया है। यहाँ पर क्या दिख रहा होगा कि 4th है, 4th के बाद 5th और 6th हॉलीडे है, और अपन को आने वाले ईयर में क्या दिखा कि 5th में एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ। तो यहां पर भी आप देख रहे होगे कि 4th के बाद 5th और 6th हॉलीडे है, 7th से यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है। लुक एट दिस, ये हाइस है, यहां से एक रिवर्सल देखने को मिला। गॉट इट? फिर उसके बाद जो दूसरी डेट है वो 14th है, यहाँ पे भी इसको मार्क कर लेते हैं, ओके। एंड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैंने अभी 2 ही डेट्स मार्क की हैं, और डेट्स देखते हैं क्या दिख रहा है यहाँ पे। कॉमन डेट आ रही
4th और 5th कॉमन डेट आ रही है, एंड देन उसके बाद 17, 16, 12th, मतलब 13th 14th हॉलीडे। यहाँ पर एक और कॉमन डेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर और लेते हैं यहाँ पे पीछे और देखते हैं क्या यहाँ पे कॉमन है कुछ। ओके, देयर इज अ कॉमन डेट एंड देन 18 देयर वाज अ, ठीक है। देयर इज अ कॉमन डेट एंड देन देयर इज अ कॉमन डेट, गॉट इट। तो इतना इनफ मार्क किया, अब इससे अपन प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन से डेट्स में रिवर्सल हो सकता है। ओके, इस चीज को करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली रीड करेंगे। एक कॉमन डेट क्या निकल के आ रही है, 5th ऑफ द अगस्त, यहाँ पे 5th को रिवर्सल है। फिर उसके बाद 5th को रिवर्सल है, मतलब 3rd के बाद 4th और 5th हॉलीडे था, 6th से मार्केट ने रिवर्सल किया, तो वही चीज को काउंट करेंगे, ठीक है। फिर 5th के आसपास रिवर्सल है, ठीक है। फिर 5th पे रिवर्सल है, ठीक है। फिर 5th पे रिवर्सल है, तो 5th विल बिकम अ रिवर्सल डेट फॉर अस। यहाँ पे क्या करेंगे, सेम टूल को लेंगे और 4th और 5th पे एक लाइन मार्क करेंगे जो कि अपन को बताएगी कि दैट दिस कैन बी अ रिवर्सल डेट, गॉट इट। अब अपन चलते हैं दूसरी डेट पे। जो दूसरी डेट निकल के आती है वो क्या आती है कि ऑन 14 देयर वाज अ बॉटम और अ ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। ऑन 14 देयर वाज अ ट्रेंड रिवर्सल, तो मैं यहाँ पे सिंपली जा करके 13, 14th को मार्क कर लूंगा। 14th के बाद क्या आ रहा है, 15th आ रहा है, गॉट इट। सो ऑन 14th और ऑन 15th 14 या 15 को एक ट्रेंड रिवर्सल आएगा, ओके। सो मैंने यहाँ पे इस चीज को भी प्रेडिक्ट किया है। अब ये भी चीज होने वाली है, आपके सामने होगी, आपके सामने, मतलब अगस्त जो आएगा वो ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे को ही दिखेगा आपको नहीं दिखेगा, सबको दिखेगा। और अभी आपके सामने मैंने जुलाई की भी कुछ डेट्स निकाली हैं, अगस्त की भी कुछ डेट निकाली हैं, ठीक है। तो जो अभी मैंने बताया है वो होने वाला है, गॉट इट। सो मैंने 5 चीज बताई है, मैंने 6 चीज बताई, हो सकता है 6 में 4 वर्क करे, ठीक है, बट 4 वर्क करेंगी। या तो अगस्त का फॉल आएगा या तो ट्रेंड रिवर्सल्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, बट सारी चीजें लॉजिकल होती हैं, समझ रहे हो। जितनी भी चीजें मैंने अभी समझाई है, जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई है, ठीक है, उसको मैं एक बार रिपीट करता हूं, समरी देता हूं और कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूं जो दिमाग में रखना है। पहली चीज, जो भी चीजें आपने अभी सीखी हैं, ओके, यू हैव टू respect it, got it। These things cannot be revealed, these things cannot be said, okay। मैं क्यों बता रहा हूं, दिस इज जस्ट गॉड नोस कि मैं क्यों बता दे रहा हूं, ओके, जस्ट गॉड नोस, ऑनेस्टली टेलिंग, जस्ट गॉड नोस। Just God knows, okay। Out of love, out of some things, है ना, तो just I'm revealing it to you, got it। इतना टाइम लगा मुझे खोजने में, बट मैं एक झटके में बता दे रहा हूँ। क्यों बता दे रहा हूँ, God knows, got it। There are some questions that I have and I don't have the answers, okay। So first thing is you have to respect it by not leaking it, by not revealing it, okay। Second thing is कि there is one more thing that I want to say, and that thing is कि जो decisions है trade like Berlin के, when I see them, people are selling it for 1,000, 2,000, 600, 500. I wonder just कि look at them and look at the people who are buying them. The people who are buying them are proving कि yeah, money can buy anything. But it was me who decided that money cannot buy this thing. Money cannot buy this knowledge. It was me who decided. There was a time when I thought that अगर मैं नॉलेज को सेल करने निकलता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या रखूँगा मैं। Then my mind said and then my heart says कि these things are precious and
you cannot just count it, or it cannot be bought by money. It can be, but there is a sum which not everyone can afford. There are rare people who can afford it. अगर मैं प्राइस टैग लगाने जाऊँ इन चीज़ों में तो बहुत रेयर लोग हैं जो अफोर्ड कर पाएंगे. एंड द थिंग विच आई रिवील्ड इज 25%. क्यों 25% है ना? क्योंकि मैं बर्डन नहीं डालना चाहता हूँ, बताना नहीं चाहता हूँ इतनी चीज़ें, बताना नहीं चाहता हूँ. मतलब एक बार मैं बता दूंगा ना सब, तो दिमाग पागल हो जाएगा कि यार कैसे, हाउ, कहाँ से हुआ ये, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, पहली चीज यू हैव टू रेस्पेक्ट इट. दूसरी चीज ये है कि अपन ने दो चीजें सीखी हैं. पहला, ट्रेंड, रिवर्सल निकालना. दूसरा, पैटर्न निकालना. ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल आपको ये बताएगा कि कब मार्केट में जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स हो सकता है. ठीक है, जैसे आपको एक अप ट्रेंड में डिप चाहिए तो कहां से डिप मिल सकती है, कहां पे आप एंटर कर सकते हो, कौन सी नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल डेट है जहां पे आप फिर बाय कर सकते हो और इस ट्रेंड में बैठ सकते हो. इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्सल. एक चीज मैंने ये सिखाई कि ट्रेंड रिवर्सल की डेट्स कैसे फाइंड आउट करनी है. एक मैंने पैटर्न बताया कि कॉमन पैटर्न ढूंढने. ठीक है, कहां पे मेजर बेरिशनेस आई थी, कहां पे किस टाइम पे किस पीरियड में मेजर बुलिशनेस आई थी. ठीक है, उस चीज को जैसे मैंने अगस्त के अर्ली में फाइंड आउट किया. ओके, तो अगस्त के अर्ली में आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है कि ये चीज हो जाएगी. क्या करना है, देखना है कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है. ओके, अगर करेक्शन के चांसेस हैं तो इस पीरियड से बढ़िया टाइम कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज पहले हो चुकी है. पास्ट बताता है कि इस पीरियड से बढ़िया कोई टाइम हो ही नहीं सकता करेक्शन के लिए. तो एक अच्छा अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ करेक्शन इन अर्ली अगस्त. यू ऑल आर एजुकेटेड पीपल, डोंट बी ब्लाइंड. ओके, मैं हर चीज बता रहा हूं तो हर चीज को ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकता हूं, हर चीज का कॉज बता सकता हूं. बाई चांस कल के दिन अगस्त में ये चीज नहीं हुई, ठीक है, आप क्या बोलोगे? जो लोग नॉविस हैं, ठीक है, वो क्या बोलेंगे कि स्टडी तो वर्क की नहीं. हाँ, क्या की स्टडी नहीं, ऐसा नहीं है. कॉज होगा ना कुछ. ठीक है, कोई तो रीजन होगा कि ये चीज वर्क नहीं की. उस रीजन को समझ जाओगे तो वो चीज एक लर्निंग पे कन्वर्ट हो जाएगी कि आगे इसको कैसे अपन यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप अंधों की तरह क्या करोगे ना कि डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा होगा, आप एक्सपेक्ट करोगे तो और ये अर्ली अगस्त में और डाउन साइड आएगा. नहीं, यहां पे वाइज होना है. ठीक है, जैसे अर्ली अगस्त में करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, जुलाई से आ चुका है, तो क्या क्यों आएगा, क्यों और मार्केट फॉल होगा? हो सकता है ना कि मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया पे साइड वे हो जाए, कोई और चीज को फॉलो अप कर ले, है ना. देखना है कि किस स्टेट पे अपन खड़े हैं अभी. ओके, एक साइडवे, अगर एक मार्केट ट्रेंडिंग है फिर साइडवे हुआ है पिछले कुछ दिन से, देन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं करेक्शन. ठीक है, एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है तो इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं करेक्शन का, तो करेक्शन मिल सकती है. कुछ ऐसे पढ़ना है. गॉट इट? दैट्स ऑल फॉर द नाउ. That's all for now. Just want to say that learn and learn. There is a lot to learn, and Berlin knows a lot. Got it? Lot more than you can ever imagine. Okay, so, and honestly telling you, Berlin will not keep anything with him. Berlin's going to reveal each and every single thing. You remember the thing, na? I'm not the one who wants students to remain students. I'm the one who wants his students to become the masters. Got it? So, all I can say is, जब तक मैं अवेलेबल हूँ, जब तक मैं हूँ, तब तक जितनी भी चीज़ें मुझे पता है, मैं एंड तक सब कुछ रिवील करके जाने वाला हूँ. Got it? So, that's it. We'll see you in another video, another session. ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ये चीज़ें अगर आपके लिए काम करती हैं और काम 100% करेंगे. ठीक है, ट्रेड लाइक बर्लिन की हिस्ट्री उठा करके देख सकते हो कि मैंने हर एक चीज को प्रिडिक्ट किया हुआ है, हर एक चीज को प्रिडिक्ट किया हुआ, हर एक चीज को. गॉट इट? हर एक चीज को. सो अभी भी मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि
जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो 100% वर्क करेंगी। बस दिमाग जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि टारगेट होना चाहिए, सीखना है मुझे, ठीक है। कोई चीज़ काम नहीं करी उससे भी सीखना है, ओके। कॉज को समझना है, दैट्स ऑल। विल मीट अगेन वेरी सोन, ठीक है। See you all guys and happy Sunday. Bye bye. Take care and I hope this secret will not be revealed to anyone other than the student of Trade Lake Berlin. Bye.